نام باقی رہتا ہے اس دنیا میں بندے کا شجی اولاد کی وجہ سے. بی بی ہے سید الانبیاء کی بیٹی فاطمہ. پوری کائنات میں سید موجود ہے. اس فرش عذاب پہ بھی سادات بیٹھے ہوں گے. پوری دنیا میں سید موجود ہے. کائنات میں وہ شہر کوئی نہیں, وہ ملک کوئی نہیں, وہ محلہ کوئی نہیں, وہ گلی کوئی نہیں علی بلال جہاں پہ سید موجود نہ ہو. سید سنی بھی ہوتے ہیں, سید شیعہ بھی ہوتے ہیں. جس بندے کو اعتراض ہے نا رسول کی 4 بیٹیاں, اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ لے تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے. السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی اذا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم آل محمد. دعا ہے خداوند قدوس ملکہ عالمیان کو, ملکہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین اور پردے میں میری بیٹھی مومنات اس پاک فرش عزا کی زینت بنی ہیں, میری مائیں بہنیں, مالک اللہ ان تمام کے گھروں کو آباد و شاد رکھے. بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں مالک شفاء کاملہ عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں مالک اولاد نورینہ عطا فرمائے. محمد و آل محمد کا کریم اللہ ہر مومن اور مومنہ کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک زیارت حسین بادشاہ کے حرم کی نہ ہو جائے. آمین. ہر زبان ضرور کہے آل محمد کا کریم اللہ بحق محمد و آل محمد, بحق محمد و آل محمد, بحق محمد و آل محمد. حقیقی وارث حجت دوراں صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات بر محمد و آل محمد. آغاز ہے اس اللہ کے پاک طیب اور طاہر اسم سے, دعات کا طالب ہوں. آغاز ہے اس اللہ کے پاک اسم سے جس کی حمد کو محمد, بھائی جس کی حمد کو محمد, جس کی بلندیوں کو علی, جس کی عصمت کو فاطمہ, جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں. آپ جی سلامت رہیں. امام زمانہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں. کائنات کی ملکہ کسی کا محتاج نہ کرے. سب سے پہلے آج کی یہ صف عزا, یہ صف معرفت, یہ منزل قبولیت اور اس پر حاضرین اور منتظرین کے دلوں پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بادشاہ کے حضور جو حجاب غیبت میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے
کہ وہ کائنات کا مطلق العنان اور مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور اپنے دونوں قدم کعبے کی چھت پہ رنجا فرما کر عالمین کو سمجھائے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ مل کے حیدری آپ جی سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یہ دو فکرے عبادتاً ہر فرش اعضاء پہ پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، عبادتاً یہ فکرے۔ 4 مصروں سے اجازت ہے اپنی عبادت کا آغاز کریں۔ دعا کا طالب ہوں، حق کیا تھا کون کھا گئے بنت رسول کا۔ شفیع بھائی بزرگ بیٹھے، میرے بھائی کے لکھے ہوئے 4 مصرے ہیں، بھائی وجی کے۔ حق کیا تھا کون کھا گئے بنت رسول کا، حق کیا تھا کون کھا گئے۔ نہ میں بھول گیا نہ پہلی مرتبہ منبر پہ آیا ہوں، توجہ ہو جائے میں دوسرا مصرع اور سال کروں۔ حق کیا تھا رانا صاحب، حق کیا تھا کون کھا گئے بنت رسول کا، دنیا یہ جانتی ہے مگر مانتی نہیں۔ حق ہے، تائید کرنا میری، حق کیا تھا کون کھا گئے بنت رسول کا، دنیا یہ جانتی ہے مگر مانتی نہیں۔ چوتھے مصرے پہ عقیدہ ملے تو دعا دینا ورنہ طالب دعا۔ حق کیا تھا کون کھا گئے بنت رسول کا، دنیا یہ جانتی ہے مگر مانتی نہیں، دنیا یہ جانتی ہے مگر مانتی نہیں۔ شاجی زہرا کے دشمنوں پہ جو کرتا نہیں لعنت، ارض و سما میں اس سے بڑا لعنتی نہیں۔ مل کے حیدری آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ زہرا کے زہرا کے دشمنوں پہ جو کرتا نہیں لعنت، ارض و سما میں اس سے بڑا لعنتی نہیں۔ عقیدہ اپنا، قبر اپنی میں جانا ہے، جواب اپنا دینا ہے۔ جب تک زندگی موجود ہے آل محمد اپنا فضل و کرم کریں۔ عقیدہ ہے جب تک زندگی موجود ہے، جب تک سانس باقی ہے، نوکری ہے، ذاکری ہے، گداگری ہے اس پاک اور سچی بی بی کی جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہے۔ یہ فکرہ ہر بندے کے سمجھنے والا نہیں ہے جی۔ اس بی بی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سید الانبیاء کا نام باقی ہے، نام باقی رہتا ہے وجی بھائی اولاد کی وجہ سے۔ رانا صاحب نام باقی رہتا ہے، شفیع بھائی نام باقی رہتا ہے اس دنیا میں بندے کا شجی اولاد کی وجہ سے۔ بی بی ہے سید الانبیاء کی بیٹی فاطمہ۔ پوری کائنات میں سید موجود ہے، اس فرش عذاب پہ بھی سادات بیٹھے ہوں گے، پوری دنیا میں سید موجود ہے۔ کائنات میں وہ شہر کوئی نہیں، وہ ملک کوئی نہیں، وہ محلہ کوئی نہیں، وہ گلی کوئی نہیں علی بلال جہاں پہ سید موجود نہ ہو۔ سید سنی بھی ہوتے ہیں، سید شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ جس بندے کو اعتراض ہے نا رسول کی 4 بیٹیاں، اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ لے تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے، تجھے پتا چل جائے گا رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ دعا چاہتا ہوں میں، شاہ جی تائید کیجئے۔ کائنات میں 10 لفظوں کی صورت ہے اللہ کے قرآن میں، سورہ کوثر۔ پوری ذمہ داری سے پڑھنے لگا ہوں، قرآن پاک اس بارگاہ میں اس مسجد میں موجود ہے، علماء بیٹھے، صاحب معرفت بیٹھے۔ 10 لفظوں کی صورت ہے سورہ کوثر۔ 10 لفظوں کی صورت میں اللہ نے 5 لفظ وہ استعمال کیے جو پورے قرآن میں کہیں استعمال نہ کیے۔ جسے شک ہو قرآن کے حاشیے پہ لکھوا لے، دستخط کر کے دیتا ہوں۔ 10 لفظوں کی صورت میں، 10 لفظوں کی صورت میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آتوئنا پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ آیا۔ یا علی میری مدد فرما۔ آتوئنا پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ آیا۔ الکوثر صرف پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
वन हर पूरे कुरान में सिर्फ एक मर्तबा आया, शानिया का पूरे कुरान में सिर्फ एक मर्तबा आया, अल अबतर पूरे कुरान में सिर्फ एक मर्तबा आया। 10 लफ्जों की सूरत है, 10 लफ्जों की सूरत में अल्लाह फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें फातिमा अता की। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें फातिमा अता की, हमने तुम्हें फातिमा अता की, हमने तुम्हें फातिमा अता की। राणा साहब, एक होती है जजा, एक होती है सजा, एक होती है अता। किसी को उसके हक के बराबर दो, उसकी मजदूरी के बराबर दे दो, उसके हक के बराबर दे दो, उसे कहा जाता है जजा। मजदूरी से कम दो, हक से कम दो, उसे कहा जाता है जुल्म। किसी बंदे का हक बनता ना हो, उसे उसके हक से ज्यादा, इस्तेहकाक से ज्यादा कोई चीज दे दी जाए, उसे भाईजान कहते हैं अता। कुरान मुस्तफ़ा के लिए जजा है, रिसालत मुस्तफ़ा के लिए जजा है, नबूवत मुस्तफ़ा के लिए जजा है, रिसालत मुस्तफ़ा के लिए जजा है, फातिमा मुस्तफ़ा के लिए अता है। यही वजह है कि कुरान पूरे का पूरा उतर आया, नबियों का सुल्तान खड़ा नहीं हुआ। नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। लेकिन जब फातिमा आती थी, मोहम्मद उठ खड़े होते। कुरान जजा, ज़हरा अता। शफी भाई, भाईजान ताई चाहता हूं अगर हक है तो। कुरान जजा, फातिमा अता, रिसालत जजा, फातिमा अता, नबूवत जजा, फातिमा अता। अब मैं एक फिक्रा पढ़ूं अकीदे का। बीबी सैयदा वो बीबी है जिसकी दहलीज पर आलमीन का रसूल शिफा तलब करने आए। या अली या अली या अली, ये बहुत बड़ा फिक्रा था जो आप खा गए। बीबी ज़हरा वो बीबी है जिसकी दहलीज पर सैयदुल अंबिया राणा जी शिफा लेने आए। कौन सा बंदा है यहां पे जो हदीसे किसा से वाकिफ नहीं है? शाह जी, बंदे बंदे को इल्म है। हदीसे किसा के लिए मासूम की गारंटी है। साहिबे हाजत पढ़ेगा तो हाजत पूरी होगी, मगमूम पढ़ेगा तो गम दूर होगा, मकरूज पढ़ेगा तो कर्ज अदा होगा, बीमार पढ़ेगा तो शिफा होगी। हदीसे किसा में मौजूद है। नबियों का सुल्तान दहलीज ज़हरा पे ज़ोफ लेके आया। आप खामोश हो जाएं तो मुकद्दर है अपना। मैं अपनी नौकरी पूरी मवद्दत से कर रहा हूं। नबियों का सुल्तान बीबी के दरवाजे पर ज़ोफ लेके आया। ज़ोफ किया था, ईसाइयों के सामने ऐलान कर दिया, अल्लाह कह रहा है तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। या अली या अली या अली, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाते हैं। ये ज़ोफ लेकर रिसालत सफा खानाए ज़हरा पे पहुंची। ईसाइयों के सामने ऐलान किया था। बेटे नबी के पास थे नहीं थे। अनफुसाना, अपने जैसे, जो अब रसूल के पास थे वो रसूल जैसे नहीं थे। जो रसूल के पास थे वो शाजी रसूल जैसे नहीं थे। क्यों ना हो, कैसे मैं दलील दे दूं रसूल जैसे नहीं थे। कोई बंदा एतराज ना कर बैठे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी। उन्होंने रसूल अल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं एक हांडी में सालन बनाती हूँ, एक सलन बनाती हूँ, एक चूल्हे पे बनाती हूँ, एक हंडिया में पकाती हूँ, लेकिन क्या वजह है, एक सालन निकालती हूँ आपके लिए, एक निकालती हूँ अपने लिए। अल्लाह जाने वजह क्या है। मेरे सालन पे मक्खियाँ बैठती हैं, आपके सालन पे मक्खियाँ नहीं बैठती। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया था,
आयशा अना ला मिसलुक, मैं तुम जैसा नहीं, अना ला मिसलुक, मैं तुम जैसा नहीं। और दूसरा अनफुसना, अपने जैसे रसूल के पास नहीं थे। जिस बंदे को एतराज हो 10वीं जमात की किताब खोल के पढ़ ले, बिरादरहुड का मशमूल है, उसमें लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह ने भाईचारा बनाया, एक मुआखात कायम की भाईचारे की। पढ़े लिखे बंदे ऐसे ही है ना जी, जिन बंदों की सीरत मिलती थी, जिनकी सूरत मिलती थी, जिनका इखलाक मिलता था, आप जिए, जिनका किरदार मिलता था, जिनकी जहनीत मिलती थी, उनको उन जैसों का भाई बनाया। तारीख में लिखा है हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ के हजरत उमर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तो इसका भाई है। सलमान का हाथ पकड़ के अबू जर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तो इसका भाई है। अम्मार का हाथ पकड़ के मिकदाद के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तो इसका भाई है। तारीख वालों ने लिखा कि सबको, हर किसी का भाई बना दिया। रसूल ने जोड़े बना दिए, जिनकी सूरत मिलती थी, जिनकी सीरत मिलती थी, जोड़े बना दिए। लेकिन रसूल अल्लाह ने मस्जिद में देखा कि मस्जिद के एक कोने में शाजी दुआ देना, मस्जिद के एक कोने में अबू तालिब का बेटा अली बैठा रो रहा था। रसूल करीब गए, रसूल अल्लाह ने कहा या अली क्यों रो रहे हो? अली बादशाह ने कहा या रसूल अल्लाह रो ना तो और क्या करूं, हर किसी को हर किसी का भाई बनाया, हर किसी को हर किसी का भाई बनाया, मुझे किसी ने का भाई ना बनाया। रसूल ने अली को उठाया, मट्टी को झाड़ा, माथे को चूम के कहा या अली अगर इनमें कोई तेरे जैसा हो, या अली या अली या अली या अली या अली मिलके या अली या अली या अली या अली अगर इनमें कोई तेरे जैसा हो, अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। बेटे नबी के पास थे नहीं, अपने जैसे रसूल के पास नहीं थे, जो रसूल के पास थे वो रसूल जैसे नहीं थे। ये ज़ौफ़ लेकर, समेट रहा हूं बयान को, ये ज़ौफ़ लेकर रिसालत सफाखाना ज़हरा पे पहुंची। अब एक फिक्रा कहूं अकीदे का, शादी दुआ देनी है, सैयद बैठे। रिसालत शफा खानाए ज़हरा पे पहुंची, कायनात की सबसे बड़ी तबीबा ने रसूल पे शिफा वाली चादर ओढ़ा दी। या अली आप जी सलामत रहें, इमाम ज़माना आबाद रखे, राणा जी कायनात की मलका आबाद रखे। भाईजान रसूल अल्लाह ज़ौफ़ लेके गए, कायनात की सबसे बड़ी तबीबा ने शिफा वाली चादर रसूल पे उड़ा दी। चादर उड़ा देने के बाद कायनात की मलका ने नुस्खे भेजे, जो लफ्ज़ सुन के बोलने के आदी है, अदब सुन के दाद देते हो। कायनात की मलका ने नुस्खे भेजे, पहले पहले हसन को भेजा, बादशाह हसन आए, फिर हुसैन को भेजा, मौला हुसैन आए, चादर के बाहर हाथ बांध के खड़े होके अर्ज करके कहते हैं नाना इजाजत है मैं चादर में आ जाऊं, इजाजत है मैं चादर में आ जाऊं। अब हुसैन के मिजाज को कौन नहीं जानता, जो अल्लाह की नमाज में मोहम्मद की मस्जिद में नबी की पुश्त पे बैठने की इजाजत नहीं लेता, वो बतूल की चादर के बाहर खड़े होके कह रहे हैं नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। पता चला मोहम्मद की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और। हाँ जी, मोहम्मद की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और। बादशाह हुसैन आए, फिर अली आए, आखिर में मालिकन आई, सदर जलसा आई, कायनात के रोजी रसा को रोटियां पका के खिलाने वाली आई, अल्लाह का पर्दा आई, अल्लाह का सबसे बड़ा राज आई। बीबी सैयदा के कदम आए, जिब्राइल की आंखें चुंधिया गई, तड़प के कहता है मालिक चादर के नीचे कौन है? आवाज आई हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा।
फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। माबूद ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रसूल है, तेरा महबूब है, अव्वल मखलूक है, तू तारफ रसूल के जरिए करवा दे। तारफ हो रहा है सैयदा के जरिए। अर्श पे इस खानदान का जरिया तारुफ जनाब ज़हरा है। बंदे मर गए रसूल अल्लाह से रिश्तेदारियां करते करते, बड़ी कोशिशें की, बड़े चाल पेच लगाए रसूल से रिश्तेदारी हो जाए, लेकिन नहीं। अल्लाह के नजदीक जो सबसे कीमती रिश्ता है वो बीबी ज़हरा का है। कायनात में अगर किसी चीज का तारुफ है तो बीबी सैयदा के जरिए। मासूम से किसी ने पूछा था, मौला फातिमा कौन है? फजाइल का बस आखिरी फिक्रा कहने लगा। मासूम से पूछा, फातिमा कौन है? फरमाया, तू कोई खुदा है जो पूछ रहा है सैयदा का? खुदा जानता है कि फातिमा की हकीकत क्या है। बशरियत जान ही नहीं सकती कि सैयदा कौन है। मौला फरमाते हैं, हम आले मोहम्मद आयमा ताहरीन 12 इमाम है जो मौला अली से लेकर इमाम ज़माना तक, बादशाह फरमाते हैं कि हम आलमीन पर अल्लाह की हुज्जत है, मगर हमारी दादी फातिमा हम पर अल्लाह की हुज्जत है। इतनी बड़ी है बीबी सैयदा। एक दरवाजे से खाली वापस आई है। 1.25 लाख अंबिया, 11 इमाम, बेबहा औसिया गुजरे हैं। भाईजान सब की तबलीग एक तरफ, 4 घंटे बतूल का खड़े रहना एक तरफ। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे, आबाद उशाद रखे। बड़ी तबलीग की है नबियों के सुल्तान ने। ताइफ की वादियों में पत्थर खाते रहे, एक दरबार से खाली वापस नहीं आई। शाह जी आधी आधी रात को बादशाह अली का बाजू पकड़ के कायनात के नबी की बेटी मदीने में रात को लोगों के घरों पे जाती रही है, दरवाजे पे दस्तक दे के कहती रही है, क्या मेरा बाबा नहीं कह के गया था कि मेरा वली अली है? लोगों ने कहा हम तुझे जानते ही नहीं। एक दरबार से खाली वापस नहीं आई। बड़ी मेहनत की है बीबी सैयदा ने पीर अली की विलायत के लिए। दरबार में गई, खजूरें लेने गई थी दरबार में। फिदक, फिदक क्या है था? बाग था ना, तो बाग के लिए तो नहीं गई थी नबी की बेटी, अली की विलायत का ऐलान करने गई थी। विलायत अली बचाने के लिए सैयदा दरबार में गई थी। दुनिया अली की विलायत को मान लेती, न बीबी ज़हरा का दर जलता, न बीबी ज़हरा का घर उजड़ता। फिक्रा बदल दूं एक और, अगर ये दुनिया बीबी ज़हरा की बीबी, अगर ये दुनिया पीर अली की विलायत को मान लेती तो मौला हुसैन को कफन मिल जाता, बीबी ज़ैनब को चादर मिल जाती। मैं बीबी सैयदा की शहादत नहीं पढ़ने लगा, मैं एक फिक्रा पढ़ने लगा हूं। काश वो फिक्रा समझ में आ जाए। इस कायनात में मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर में 3 बीबियां ऐसी गुजरी हैं जो वक्त से पहले ज़ईफ हो गई। राणा जी, भाई शफी, 3 बीबियां हाय करना जिसे अल्लाह ने जुबान अता की है। कायनात की मलका के घर की गुर्बत है, ठीक है, अयाम फातिमा है, हर बंदा आज़ादार है। मौला का हुसैन का पुरसा देना, इमाम ज़माना को बीबी सैयदा का। 3 बीबियां इस खानदान में ऐसी हैं जो वक्त से पहले ज़ईफ हो गई। 3 बीबियां। पहली बीबी फातिमा ज़हरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, उम्मत के मजालिम ने बूढ़ा कर दिया।
पहली बीबी बीबी फातिमा, जिसे उम्मत के मजालिम ने शफी भाई बूढ़ा कर दिया। दूसरी मौला हुसैन की बेटी बीबी फातिमा सुगरा, जिसे अली अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। अब तीसरी बीबी का मैं जिक्र करूं, यकीनन आपके जहन पहुंच गए होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा बैठा है जिसका जहन नहीं गया तो मैं फिक्रा पढ़ दूं ना तीसरी बीबी का तारुफ। पहली बीबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, जिसे उम्मत के मजालिम ने बूढ़ा कर दिया। दूसरी फातिमा सुगरा, जिसे अली अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। तीसरी बीबी है बीबी फातिमा, नाम है, लकब सकीना है। बीबी को शेमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। एक बीबी जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी उम्मत के जुल्म ने बूढ़ा किया। तीसरी बीबी, नाम वो भी फातिमा, शेमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। कुजा चाचा जी, कुजा तावीज़े हुसैन, कुजा ताजियाना शेमर। बादशाह हुसैन ने इस बीबी को दुआओं में मांगा। आधी आधी रात को मेरा मौला दुआ मांगता, तहज्जुद पढ़ने के बाद बादशाह कहते मेरा अल्लाह एक बेटी अता कर, बिल्कुल मेरी अम्मा जैसी। हाय हाय, सलामत रहे, आबाद और शाद रहे, मौला पुरसा कबूल करें। एक बेटी अता कर, बिल्कुल अम्मा जहरा जैसी। मैं उससे वैसे प्यार करूं जैसे अम्मा जहरा से मेरा नाना करता था, वो मुझसे उतना प्यार करे जितनी मेरी माँ जहरा मेरे नाना से करती थी। परवरदिगार की आवाज़ आई, हुसैन तुझे बेटी दे दूं तो कैसे पता चलेगा कि तू मुझसे मोहब्बत ज़्यादा करता है या उस बेटी से। फरमाया माबूद, अपना और सकीना का प्यार तोलना हो तो 10 मुहर्रम असरे आशूर करबला में आना, मैं उसे रोती छोड़कर तेरी बारगाह में सजदाए आखिर